इब्न अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न सालेह, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनसे और आपसे राज़ी हो। और सैयद अब्दुल्ला अल हबीब का कथन, और सलफ़ के हर शेख से आने वाली रोशनी इस शरीफ जिस्म, इस शरीफ कदम से नूर पर नूर होकर तल्ले करती और आमने सामने होती रही। और कहा गया, यूसुफ, मगर मैं अल खौजक में न शक देखता हूँ न चुभन। دین کو اپناؤ، ان کے ساتھ داخل ہو۔ جمعے کے دن شہر کے زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور جب بھی پہنچتے ہیں تو ان کا سیوک کہتا ہے الفاتحہ، اور انہوں نے الفاتحہ پڑھنے کے بعد ان سے ہاتھ ملایا اور چلے گئے۔ اور فاتحہ کی یہ پرمپرا ہمارے سوامی شیخ بن عمر کے بیٹے تک رہی، پھر یہ بند ہو گئی۔ اور بھی وہ قبلی مسجد کی دہلیز پر بیٹھتا ہے، اور وہ ازبی سے نکل کر براجی کے قریب اور تربہ کی طرف آتے تھے۔ تو جب ظہر کی اذان ہوتی تو وہ اٹھتے اور پوری وقار کے ساتھ مسجد میں معلوم نماز ادا کرتے، پھر اپنے اہل کے پاس جاتے، پھر 1 گھنٹے بعد مسجد نکلتے، اپنے رب کے کلام میں مستغرق یا اس کی زیارت جیسی حید لیے ہوئے، اور یہ بات ان کے چہرے پر عیا تھی، اور اپنے تمام دنوں میں وہ اسی پر قائم رہے، سوائے اس کے کہ کوئی بیماری، سفر یا امت کے عام کاموں میں شرعی حکومتی مشغولیت آ جائے۔ اور سے سالے کا طریقہ بھی ایسا ہی تھا۔ اسماعیل نے اس زمانے کے لوگوں کے حکام کے درباروں میں داخلے کی طرف جھکاؤ پر اعتراض کیا۔ پوروجوں نے اپنے سمے کو بچانے، اپنے گھنٹوں کو نینترت کرنے، پرسدھی کو ناپسند کرنے اور گمنامی کی اور جھکاؤ رکھنے کا جو راستہ اپنایا اور اچھاؤں کو تیاگ دیا، تو ان کے دین میں برکت پوری ہوئی۔ جو سیون چلے گئے اور وہی بس گئے۔ ان کی آجیوکا، تنتوش اور ویراگیہ کے معاملوں پر ان کا درشٹیکون، اور اس کے ادیشیہ اور منشا کو اس طرح سمجھنا کہ ان پر لالچ کے دروازے نہ کھلے۔ اسی طرح گھمنڈ، دکھاوا، دھن میں پرتسپردھا اور شیخی بگھارنا، جس سے منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے گرو کی حقیقت کو جان لیا کہ یہ ستیہ کے پکوے، دل کی شدھی، اس کے شدھ گیان اور پریم تک پہنچنے اور اس کی سب سے بڑی پرسنتا حاصل کرنے میں ہے، تو انہوں نے اسے حاصل کرنے، اسے پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے کمر کس لی، اور انہوں نے ان چیزوں کو حاصل کرنے میں وچار، سمے، پریاس، کھمتا اور ارجا لگا دی، جو رب کے یہاں ایک سراہنیہ پریاس ہے، جس کا الیکھ ستیہ کے کتھن میں کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قبول کی جائے گی۔ کپڑے، کھانے اور پینے میں دکھاوا۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھاوا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا، میں اور میری امت کے نیک لوگ دکھاوے سے بری ہیں، میں اور میری امت کے نیک لوگ دکھاوے سے بری ہیں۔ وہ ہاتھ ملانے کی سنت کے لیے اکٹھا ہوتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی چارہ، اسنیہ، وفاداری اور پیار بڑھے، اور ہاتھ ملانا دویش کو دور کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مومنوں کا ایک دوسرے کی اور پیار، سمان، وفاداری اور اسنیہ کے ساتھ ہاتھ بڑھانا دل میں ایمان کو بڑھاتا ہے اور معافی کا کارن بنتا ہے۔ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ انہیں الگ ہونے سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ مومنوں،
विश्वासियों का। और इसी तरह कुछ सहाबा कहते थे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपने साथियों के चेहरों पर मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। उनका साथी यह समझता था कि वह उनके लिए सबसे सम्मानित व्यक्ति है, क्योंकि वह उनकी प्रसन्नता, खुशमिजाजी, दया और रहमत को देखता था। मेरे रब की दुआएं और सलाम उन पर हों। और इसी तरह यह जुमे और दूसरे दिनों में होता था, और उनका ज्ञान और तकवे वाले अपने बड़ों के इर्द गिर्द इकट्ठा होना और उनका सम्मान करना ऐसे रास्ते हैं जो सुधारते हैं, अनुशासित करते हैं और रक्षा करते हैं। रास्ते की रक्षा करते हैं, रास्ते की रक्षा करते हैं बहुत से बदलावों और धोखे से, और जूर, झूठ से और पतन के कारणों से भी बचाव होता था। और नूर वाले, इल्म का नूर, तकवा का नूर और विलायत का नूर उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे। हर मुनाफिक पाखंडी को मेरे मालिक कहना। अगर वह तुम्हारा मालिक है तो तुमने अपने रब को नाराज कर दिया है। उसे मालिक कहो तो रब नाखुश। मालिक मोहम्मद, नेक लोग। अगर वह फासिक मुजरिम है तो मैं उसे मेरे सैयद कैसे कहूँ? जैसा कि आपने इन खबरों के जिक्र में सुना, इसी तरह हद्रामौत के आम शहर और गांव थे। वे अपने बड़ों, नेक लोगों और विद्वानों के चारों ओर इकट्ठा होते थे, और वे मामला उनके पास ले जाते थे और उनकी राय पर अमल करते थे। और इस वजह से अल्लाह ताला उन पर नजर रखता है। और जिक्र किया गया कि इन जीवनियों में विनम्रता है। अब उम्र को उस चीज़ में बर्बाद नहीं किया जाता जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, बल्कि अब उसे उस चीज़ में बर्बाद किया जाता है जो नुकसान पहुंचाती है। उम्र को उस चीज़ में बर्बाद करना जो नुकसान पहुंचाती है। उम्र को उस चीज़ में खर्च करना जो बुराई लाती है, जो दिल को काला करती है, जो चेहरे को हक से फेर देती है, जो गज़ब में डालती है। और अल्लाह तबारक व ताला की पनाह। और अगर किसी व्यक्ति के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि वह उन चीज़ों को छोड़ दे जो उससे संबंधित नहीं है, यानी जो उसके दीन में उसके लिए मायने नहीं रखती। तर्क मा ला यानी। हाँ। एक अच्छा मुसलमान है, उसके इस्लाम की खूबसूरती में से यह है कि वह उन चीज़ों को छोड़ दे जो उससे संबंधित नहीं है। तो उस चीज़ में पढ़ने का क्या जो उसे नुकसान पहुंचाती है, और उस चीज़ में समय बर्बाद करने का क्या जो उसे भ्रष्ट करती है। और अल्लाह तबारक व ताला की पनाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आप जानते हैं, जब हबीब अब्दुल्ला बिन हुसैन और उनके भाई हबीब ताहिर बिन हुसैन बिन ताहिर ज्ञान हासिल करने के दिनों में अपना समय व्यवस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा और कहा, बाकी समय, जो खाने का समय है, वह हम पर बिना किसी फायदे के गुजर जाता है। बोले, ठीक करेंगे। जब तक वह खाता है, तुम पढ़ते हो और वह तुम्हें सुनता है और फ़ायदा उठाता है। जब वह ख़त्म कर ले, तो बस किताब दूसरे को दे दो। वह खाता है और पहला वाला पढ़ता है, ताकि खाने का समय बिना फ़ायदे के बर्बाद ना हो, तो उसने उसके लिए। अल्लाह ताला की रज़ा उन पर हो। जब बड़ी चाबी वाली घड़ी आने लगी, अब्दुल्ला बिन हुसैन के दौर में एक व्यक्ति उनके लिए घड़ी लाया। बोला, आप समय के बड़े पाबंद हैं, यह घड़ी समय संभालने में मदद देगी। उन्होंने उसे पास रख लिया। कुछ देर बाद पूछ लिया, वह घड़ी कैसी है? जवाब मिला, रुक गई। बोले, चाबी नहीं भरी? उसने कहा, मौका ही न मिला। उन्होंने कहा, तुम इसे मेरा समय बचाने लाए थे, या भला मेरा समय बर्बाद करने? मेरे पास समय नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूँ। मेरा परिवार और उसके सभी बच्चे अब रात और दिन के समय मेरे साथ अच्छे कामों में लगे रहते हैं। रमज़ान में
हमारे पास ज़्यादा काम होता है, क्या आप में से कोई मुझे अपना समय बेचेगा? उनका मतलब उन्हें समय के मूल्य के प्रति सचेत करना था। वह चाहते थे कि काश वह किसी भी कीमत पर समय खरीद सकते ताकि रमज़ान में अपने नेक कामों को बढ़ा सके, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा इबादत और नेक कामों की ज़रूरत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस तरह वह कहता है, और पूर्वज और उनसे पहले के लोग गुजर चुके हैं, और उनकी आकांक्षा नेक काम और कृपा हासिल करना थी। उन्होंने धोखेबाज दुनिया को ठुकरा दिया और उसके लिए कोशिश नहीं की, और जो भी आता है वह देने में जल्दी करता है। उनके गरीब आज़ाद हैं, और अमीर लोग नेक कामों में अल्लाह के सवाब की उम्मीद में खर्च करने वाले हैं। उनका लिबास तकवा है, उनकी निशानी हया है, और उनका मकसद कथनी और करनी में रहमान है। उनकी बरकत से धरती के मैदान और समतल आबाद हुए। अल्लाह वह लौटा दे जो हमसे छूट गया है, और उसे जिंदा करे जो हमारे अंदर मर गया है। बेशक वह सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह। आहिर के बाद बेटा नेक, पिता मक्का, इबादत से यश। बच्चों और खास लोगों की अच्छाई पर। और एक दिन उसने उससे कहा, जो रोशनी तुम्हें मिली है उसे जाहिर करो ताकि बंदे और देश तुमसे फ़ायदा उठा सके। तो वह अपनी मस्जिद कस्बी पर बैठ गए और घर से एक हाल उन पर गालिब आ गया, और फातिहा उनके दाएं और बाएं उनकी प्रस्तावना थी, और बस ज़ोहर तक बैठे रहते। जब ज़ोहर का वक्त हो जाता तो वह जुमे और ईद का खुतबा पढ़ते, फिर वह असर तक लौटते और फिर असर के लिए निकलते। अल जामी के नाम से जाना जाता है। बरकत। उनके बाद उनके बेटे उमर बिन तहा उनके उत्तराधिकारी बने, और यहाँ उनकी कुछ खबरों और हालतों का जिक्र है। सौंदर्यपूर्ण रूप जो शरीयत और महान सुन्नत के तराजू पर तौला गया हो, वह उनसे आगे नहीं बढ़ता। उनके व्यक्तित्व में भी कमाल झलकता था। सलफ के सैर व सुलूक से उनका गहरा जुड़ाव था, और अल कुशैरी की रिसाला पढ़ने का उन्हें शौक था। इमाम अल कुशैरी की रिसाला उन किताबों में से है जो पूरब और मगरिब में उम्मत के अख्यार के बीच मशहूर हुई। इसमें वे यकीन, धमकी और हकायक के मालिकों में से गुजरे हुए लोगों के सियर बयान करते हैं, उनके कुछ कलाम और अहवाल का जिक्र करते हैं, और किताब को नाफे व मुफीद फसूल में मुरतब किया है। और सल्फ़े सालिहीन इसे पसंद करते थे, और शायद आप में से बहुतों ने इसे न पढ़ा हो, न जाना हो, या देखा भी न हो। अल कुशैरी की रिसाला एहसान की उन किताबों में से जो नेक लोगों के बीच मशहूर हुई। उन्होंने इसे पसंद किया और उसका फ़ायदा बहुत बड़ा था। इमाम अल कुशैरी, अल्लाह उन पर रहमत करे, की रिसाला, इसमें उन्होंने कौम के मसलक का जिक्र किया, उनके कई अकाबिर और अयान का जिक्र किया, और अल्लाह सुब्हानहू व ताला तक के सफ़र और रास्ते के बारे में उनके कुछ कौलात बयान किए।
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ امام تھے اور مشہور رسالہ کی تعلیف میں کٹ کر لگے رہے اور مکان زمانہ میں وہ وسیلے بھی نہ تھے جنہوں نے آج ہمیں مختلف کتابیں پڑھنا آسان بنا دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کچھ بڑے مفتی جیسے تریم شیخ ابو بکر خطیب کچھ جوابوں میں لکھتے ہیں، ہم نے سفید کاغذ کی کمی کے کارن جواب مختصر کیا ہے۔ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس سفید کاغذ ہی نہیں، لکھنے کا کاغذ نہیں، تاکہ جواب کو تفصیل سے لکھ سکے، کچھ بھی ساتھ نہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں کوڑے دانوں میں پھینکا ہوا سفید کاغذ شاید اتنے بھر کا ہے کہ پہلے کے 4-5 علماء اس سے بہت سی کتابیں لکھ ڈالتے۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا، میں نے ایک دن میں 9 کراس لکھے۔ ان کے یہاں کراس سے مراد 10 پرزے ہوتے ہیں، یعنی 20 پرشت، 10 پرزے، پنہ در پنہ، کل 20 پرشت، تو ہر 10 پرزوں کو وہ ایک کراس کہتے ہیں۔ 9 کراس یعنی 90 پنے، 90 پنے یعنی 180 پرشت جو انہوں نے ایک ہی دن میں لکھے۔ اگر امام نووی کی تصنیفات کو ان کی عمر پر بانٹے تو ہر دن کے حساب سے ایک کراس نکلتا ہے۔ 20 پرزے، 40 پرشت ہر دن۔ یہ تو صرف روز 40 پنے لکھنے کا حساب ہے، اس کے علاوہ تالیف، اس کے علاوہ مطالعہ، یہ تو بس ان کی تصنیفات کا حساب ہے۔ اور پھر کن دنوں میں، مشکل کے دنوں میں اور پورے دنوں میں، یہ سب کہاں ہے؟ وہ کیول 45 سال جیے، اور جب ان کی کتابیں بانٹی گئیں تو ہر دن کے لیے ایک ایک کراس نکل آیا۔ اندرونی سچ نووی سے بھی اوجھل۔ امام نووی کا فیض مختلف امتوں اور جماعتوں تک پہنچا، اللہ تبارک و تعالی ان سے رضامند ہو۔ وہ اپنی نماز میں ہر دن، خاص کر ظہر کے بعد، قرآن پڑھتے تھے۔ رات کے آخر میں ہونے والی اپنی تلاوت کے علاوہ تفسیر میں وہ 1/4 گھنٹہ پڑھتے تھے۔ وہ ہر دن 5 سے 6 جز پڑھتے تھے، ہر دن یہی پڑھتے تھے۔ ایک ہی دن میں یہ ان کی نجی تلاوت اور پڑھانے کی تلاوت کے علاوہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس طرح انہوں نے اس کے بعد زیارت پڑھی۔ بسم اللہ، اللہ رازق کریم۔ کیونکہ ان کے لیے جب وہ سایہ ستمبھ کے پاس داخل ہوتے تو یا یوں کہیے بائیں طرف 3 قدم جاتے
जुमादा आखिर सन 1385 और उन्हें रविवार की सुबह दफन किया गया। उनके ख़त्म के दिन तरीम और एनात के ज़्यादातर लोग हाजिर हुए। उनकी उम्र 63 साल थी। हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर इब्न अल खत्ताब और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तरह उन्होंने 5 बेटे छोड़े, रहा मोहम्मद, अब्दुल कादिर, अब्दुल रहमान और अशैक, और 4 बेटियां जिनमें शेखा शामिल है। और कहा करते कि उनकी तरीम और एनात की मुरतब ज़ियारतें थी। हमारे इर्द गिर्द के इन इलाकों के लोग तरीम और एनात की तरफ 12 आते जाते रहते, क्योंकि उन्हें इस सरजमीन और यहाँ के मर्दों व काबे से दिली, रूहानी और ख़ानदानी राबते नज़र आते थे। सहाबा के अहद से, फिर ताबीन, फिर ताबे ताबीन, फिर अहले बैत में से जो यहाँ आकर बसे, उनमें सबसे पहले अली खाली कसम थे। अली खाली कसम यानी 531 हिजरी में तरीम आए और यही बस गए। तो वादी के अख्यार और अहले इस्तिकामत तमाम उलेमा के दिल इस इलाके और इसके लोगों से लग गए, और वे बार बार आते जाते रहते थे। सयून से तरीम की दूरी एक दिन से भी कम में तय हो जाती थी। अगर कोई मुसलसल चलता तो 6-7 घंटे में पहुंच जाता। इसके बावजूद वे यूं ही ज़ियारत छोड़ते नहीं थे। उनमें से हबीब मोहम्मद बिन हादी अस्सक्ताब भी हर साल तरीम और उसके आसपास आते जाते थे। कभी कभी वे नबी हूद अलैहि व अला नबीना अफ़्ज़लुस सलाती व सलाम की ज़ियारत के दिनों में आना मुकर्रर करते। पैगंबर हूद जब तरीम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने सयून लौटने का इरादा किया। तो हमें खबर मिली। उन्होंने उनसे कहा, हबीब अहमद ने लौटने का इरादा किया है। उन्होंने कहा, अगर तुम लौट गए तो लोग ज़ियारत से काहिल हो जाएंगे, वे कहेंगे। अल्लाह ने कहा। उन्होंने कहा, लेकिन ठंड है। उन्होंने कहा, हम ठंड को भगा देंगे। उन्होंने उनसे कहा कि यह अशुभ है। उन्होंने कहा, खलास, इरादा बदला, चला, गर्मी लगी। वे नदी में गुस्ल करने निकले। उन दिनों नदी रमा दमा रहती थी। हमने गुस्ल किया और हस्सा की तरफ निकले, फिर कुब्बा के पास पहुँचे। जब कुब्बा पर पहुँचे तो गर्मी महसूस हुई। कोई कहने लगा, पंखे लाओ। हाथ के पंखे के अलावा कोई पंखा न था। उनमें से एक ने अहमद के सिर पर पंखा रखा और मुझसे कहा, आओ देखो क्या कह रहे हैं, यानी हम उनकी ईद की नमाज वहाँ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। और इसी तरह ज़ियारतें होती थी, यहाँ तक कि वे शुभ ईद तक निकल जाते थे। वहाँ एक भी घर न था। ये सद्दा मौजूद था और वहाँ सिर्फ मोहम्मद मौला ईदी की मस्जिद और उनका घर था, जो बड़ी मस्जिद अब है। वह तब न थी, लेकिन वे उस जगह जाते, नूर देखते और वादी में बड़ी रूहानियत महसूस करते थे। यहाँ ईद की शुरुआत दारुल फरीद और ईद का अंत वहाँ पहाड़ों की समाप्ति पर। ईद एक चौड़ी वादी है। तो ये चीज़ें कौम में जारी रहीं, यहाँ तक कि हबीब अली हबशी ने भी, जब उनका इंतकाल हुआ, कहा, अगर मैंने देखा कि मेरी माँ ने तरीम की ज़ियारत की है वे करम का केंद्र थे। और इब्न अब्दुल्ला बिन शेख अल अदरुस कहते हैं, तरीम में मेहमान अगर वे 1000 भी हों तो कोई हमसे उनके बारे में झगड़ा नहीं करता। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। जो 1000 से ज़्यादा होंगे उनमें मैं आप में से कुछ को साझेदार करूँगा। वे मेहमानों का ख्याल रखते थे, उनका इकराम करते थे
और वे शमाइल व मकारिम के मालिक थे। और इसी तरह वह कहते हैं कि उनके और इलाके के लोगों, बड़ों और छोटों के बीच स्नेह और मोहब्बत थी, और यह हाल तब तक रहा जब तक उनका निधन नहीं हो गया। उनकी उम्र 63 थी, जैसे नबी अबू बकर, उमर और आयशा की उम्र थी। और शरीफ अल्लाह की रज़ा उन पर। जिस दिन यहाँ कब्रिस्तान में हबीब की बेटी के जनाजे में उसकी उम्र भी 63 साल निकली। अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा उन पर हो। और हमारे सरदार उस्मान ने इससे आगे बढ़कर 82 तक पहुंची। बुआई, कापना, पौधारोपण, मजबूती, हिफाजत, अमानत की अदायगी और नबूवत व रिसालत से निस्बत की रस्सियों को बांधना, क्योंकि असल इल्म वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेकर आए और जिस ओर उन्होंने हमें बुलाया और राह दिखाई। इन हलकों के क़याम के ज़रिए आप इन मजबूत रस्सियों से जुड़ते हैं, तो अल्लाह आपको इखलास, सिद्क, मजबूत रूह और काम को इत्कान व एहसान के साथ अदा करने की तौफीक देगा, क्योंकि इसका मकसद रहमान की रज़ा है। और जो चीज़ रहमान की रज़ा के लिए हो उसे ऐसे अंदाजों में पेश करना चाहिए जो उस मकसद के योग्य और मुँह हो। सच्चे और मुँह लोगों की जंग अल्लाह जल जलालू के साथ अल्लाह के सिपाहियों में से हों। उन्होंने सिद्क व इखलास दिखाया। उनके ज़रिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की रस्सियाँ उसकी उम्मत के सीखने वाले और पढ़ने वाले अफराद तक फैलती हैं। अल्लाह आपको इस अमर की तकमील सबसे अच्छे, सबसे मनभावने और सबसे प्यारे तरीके से करने में मदद और ज़ाहिर और बातिन दोनों में अकाबिर की सुन्नत के साथ जो कुछ हमारे सामने पेश हो और हम उससे न हटे जो हमारे रब को सबसे ज़्यादा पसंद है। ए अल्लाह, हमें इसके साथ इकराम अता फरमा और हमें सर फातिहा के सदके अशरफ रास्तों पर चलाकर हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी तक पहुँचा।